Hello everyone, welcome to the lecture series of computer graphics. In this video, we'll learn about the line drawing algorithm, that is midpoint line drawing algorithm. So let's begin. Now, midpoint line drawing algorithm is an incremental algorithm based on integer arithmetic. Now, if we say that the entire 2D space is made up of 4 quadrants, or we can say 8 octants. So this is our first quadrant, second quadrant, third quadrant, and fourth quadrant. Further, we can divide it into 8 octants, like this and like this. So this is our first octant, second octant, third octant, fourth, 5, 6, 7, and 8. So now here for the midpoint line drawing algorithm, we are assuming that the line is drawn only in the first octant, that is over here. So now let's begin. Now, if I say कि अगर हमारी जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से पास कर रही है, these are my pixels, this is one pixel, this is another pixel, this is another, this is another, और अगर हमारी लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो रही है, right? अब अगर हम इन दो पिक्सल्स को, let's say if I call this upper pixel as northeast and if I call this lower pixel as east, right? Now हमें पता है कि जो पिक्सल्स हैं वो सारे इंटीजर पोजीशंस होती हैं, राइट? अगर लाइन कुछ इस तरीके से पास कर रही है, अब लाइन जो है इन दो पिक्सल्स के बीच में से पास कर रही है, दैट मींस बिटवीन नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट. सो नाउ हाउ डू वी डिसाइड कि ये जो लाइन है इसके लिए हमें कौन से पिक्सल को चूज करना है, नॉर्थ ईस्ट वाले पिक्सल को चूज करना है या फिर ईस्ट वाले पिक्सल को चूज करना है. नाउ इन दिस, यूजिंग द मिड पॉइंट लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम, वी विल लर्न हाउ टू चूज द पिक्सल्स इफ अ लाइन इज पासिंग इन बिटवीन फ्रॉम 2 pixels. Now considering the equations that we will be using for this algorithm, equations to be used. Now we have already seen one equation which is y equal to mx plus b while seeing the DD algorithm, right? Now here n can be further written as dy upon dx, since this is the slope, into x plus b. Now if I multiply this dx multiplied by y, this is x into dy plus b into dx. If I take these factors on the other side, this becomes x into dy minus dx into y plus b into dx equal to z. Now this is nothing but any function of x and y, right? Further, we know that the basic equation of a line is f x y is nothing but a into x plus b into y plus c. Now if I compare these two equations, let's call this as equation 1 and let's call this as equation 2, right? So from comparing these two equations, we can get the value of these three coefficients, that is a, b and c, right? So what is the value of a? A comes out to be equal to, with x we have the coefficient dy and with x over here we have the coefficient a. So a becomes equal to dy. Similarly, b becomes equal to minus dx and c becomes equal to b dot dx. So these three are nothing but the basic parameters of the line that we will be using while solving the equations. So these are the 3 parameters of line. So if let's say if A is my current pixel, this is my current pixel जिस पे हम currently खड़े हैं, right? और अगर हमारी लाइन जो है कुछ इस तरीके से पास कर रही है, ठीक है? नाउ वी नीड टू चूज कि हमें कौन सा पिक्सल को चूज करना है बिटवीन दिस नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट अगर हमारी लाइन इस तरीके से पास कर रही है. सो मिड पॉइंट लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम के लिए हम क्या करते हैं, हम इस नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट का जो मिड पॉइंट है, दैट इज दिस मिडिल पॉइंट, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, राइट? नाउ वंस वी हैव कैलकुलेटेड दिस मिड पॉइंट, देन वी सी कि जो लाइन है वो हमारे मिड पॉइंट के ऊपर से जा रही है या फिर जो लाइन है वो मिड पॉइंट के नीचे से जा रही है. Let's say something like this, right? अगर हमारी जो लाइन है वो मिड पॉइंट के ऊपर से जा रही है, दैट मीन्स वी से दैट द लाइन इज क्लोजर टू द नॉर्थ ईस्ट पिक्सल. सो इन दैट केस वी विल चूज दिस पिक्सल एज द नेक्स्ट पिक्सल.
But if a line is passing below the midpoint, that means it is closer to the east pixel. In that case, we will choose east as our next pixel. So basically, we need to find the midpoint of the two pixels, that is northeast and east. So we say if M is the midpoint is above the line. If M is above the line, that means in this case, जब लाइन इस तरीके से पास कर रही है तो M क्या है? M is above the line. So in this case, we choose east as the next pixel. Choose E as the next pixel. But if M is below the line, that is this case. इस केस में क्या है? M जो है वो लाइन के नीचे है. If M is below the line, then choose northeast as the next pixel. Choose northeast as next pixel. Right. Now the equation that is to be used over here is that we have just seen f of xy is nothing but x into dy minus y into dx plus b into dx. Right. Now अगर हमारी कोई भी लाइन है वो ना तो मिड पॉइंट के ऊपर से पास कर रही ना वो मिड पॉइंट के नीचे से पास कर रही, बट इट इज पासिंग फ्रॉम द मिड पॉइंट. लेट्स से इफ द लाइन इज पासिंग समथिंग लाइक दिस इज माय लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम द मिड पॉइंट. दैट मीन्स मिड पॉइंट जो है वो लाइन के ऊपर ही लाई कर रहे हैं. राइट. तो अगर हम इस मिड पॉइंट की वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो दिस विल इक्वेटेड टू 0, राइट, बिकॉज द पॉइंट इज लाइंग इटसेल्फ ऑन द लाइन and hence it will satisfy this equation of the line. So in that case, if I substitute the value of midpoint in this equation, this will equate it to 0. So in that case, अगर हम midpoint की value को इस equation में substitute करते हैं, this will come out to be 0, right? But अगर हम midpoint के अलावा कोई भी value को substitute करते हैं, that means अगर हम कोई मिड पॉइंट के ऊपर वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं या फिर मिड पॉइंट के नीचे वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, इन दैट केस दिस फंक्शन विल नॉट कम आउट टू बी 0, राइट. सो इन दैट केस दिस विल कम आउट टू बी सम वैल्यू विच इज नॉट इक्वल टू 0. तो नाउ लेट्स से अगर हमारा जो करंट पिक्सल है वो है xp yp, राइट. सो नाउ आई कैन कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट. सो ईस्ट के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या होगी? दिस विल बी xp plus 1 and this will be y coordinate is same, that is yp. Similarly north east के coordinates क्या हो जाएंगे? This will be xp plus 1 and y coordinate भी एक increase होगा, this will be yp plus 1. Now I can calculate the coordinates of the midpoint. Let's say the midpoint is n, तो इसके coordinates क्या हो जाएंगे? Add the x coordinates of north east and east and divide by 2. So this will be 2xp plus 2 divided by 2, which comes out to be xp plus 1. Similarly, 2yp plus 1 divided by 2, which comes out to be yp plus half. So now these are my coordinates of the midpoint. Now if I say that the line is passing something like this. The line is passing like this, right? Let's say this is my some point q. So now we say that q is above m. अगर q above m है, so we will choose northeast as my next pixel, right? Because जो line है वो closer है to the northeast pixel. But if I have the other way around, let's say if the situation is like this, this is xp, yp. This is northeast, this is east. Here the coordinates are xp plus 1, yp plus 1. Here the coordinates are xp plus 1, yp. The coordinates of the midpoint are xp plus 1, yp plus half. So now in this case the line is passing something like this. That means q is below m. If q is below m, then we will choose east, right? So can we say अगर हम लाइन की इक्वेशन, अगर लाइन हमारे मिड पॉइंट से पास करती है, ठीक है, अगर लाइन मिड पॉइंट से पास करती है, लेट्स से लाइक दिस,
सो अगर हम इस मिड पॉइंट को अब इस लाइन के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट मीन्स इफ आई सब्स्टिट्यूट एफ ऑफ एम, तो ये क्या होगा, दिस विल इक्वेट टू जीरो बिकॉज मिड पॉइंट तो लाइन के ऊपर ही लाई कर रहा है। बट अगर लाइन हमारी जा रही है इस तरीके से लाइक दिस, और हम इस मिड पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करते हैं इस लाइन की इक्वेशन में, तो क्या होगा, दिस f of m will come out to be greater than 0। लाइन जा रही है इस तरीके से, मिड पॉइंट इसके नीचे लाई कर रहा है। अब आप इस मिड पॉइंट को इस लाइन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हो, सो दिस विल इवैल्यूएट टू ग्रेटर देन 0। बट इस वाले केस में अगर लाइन जा रही है इस तरीके से और हम इस मिड पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करते हैं इस लाइन की इक्वेशन में, सो दिस विल इवैल्यूएट टू लेस देन 0। सो बेसिकली हम मिड इसके साइन को नोट करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें नॉर्थ ईस्ट पिक्सल को चूज करना है या फिर ईस्ट पिक्सल को चूज करना है। अगर आप मिड पॉइंट को लाइन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हो एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी more than 0, in that case choose the northeast pixel। but if अगर आप मिड पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो लाइन की इक्वेशन में and this is equating to less than 0, in that case you have to choose the east pixel। so now if we write down the algorithm of this, so basically if we write down the algorithm for next choice, so the algorithm says if f of m comes out to be greater than 0, then choose northeast pixel। That means q is above the midpoint m। But if f of m is less than 0, in that case choose e। That means q is below the midpoint m। Now to evaluate this midpoint m, we use a decision variable that is d। So to evaluate the midpoint m, we use a decision variable d। Decision variable d। Now d says d is representing the equation of the line that is being denoted by f of xy। Now initially हम क्या करते हैं, हमारे मिड पॉइंट की वैल्यू क्या आई थी, मिड पॉइंट m की वैल्यू आई थी xp प्लस 1 yp प्लस हाफ। x की जगह हम लिख देते हैं xp प्लस 1, y की जगह लिख देते हैं yp प्लस हाफ। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है आपके मिड पॉइंट को, और मिड पॉइंट m को ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं यूजिंग दिस डिसीजन वेरिएबल दैट इज d। नाउ इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस इन द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, a ऑफ x प्लस b ऑफ y प्लस c इक्वल्स टू 0। सो x की जगह हम लिख देते हैं xp प्लस 1, y की जगह लिख देते हैं yp प्लस हाफ प्लस c। नाउ लेट्स से कि हमारा जो डी ओल्ड है, जब हमने एल्गोरिथम को स्टार्ट किया तो हमारा जो मिड पॉइंट है दैट इज द फर्स्ट मिड पॉइंट m, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय दिस डी ओल्ड। तो फर्स्ट मिड पॉइंट m तो हमारा यही है जो हमने इससे कैलकुलेट किया, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय नोटेशन दैट इज डी ओल्ड। सो डी ओल्ड इज इक्वल टू दिस डी ओवर हियर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे फर्स्ट मिड पॉइंट को। नाउ बेस्ड ऑन द साइन ऑफ d we choose E और northeast pixel। So basically अभी हमने क्या देखा था, अगर f of m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो आप नॉर्थ ईस्ट को चूज करो, और अगर f of m की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 आ रही है तो आप ईस्ट वाले पिक्सल को चूज करो। अब m इज नथिंग बट द मिड पॉइंट, सो बेसिकली हमने इस मिड पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करा f में, और दिस इज माय इक्वेशन जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय d। सो कैन वी से कि अगर आप d की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 आती है, सो उस केस में हमें क्या चूज करना है, हमें नॉर्थ ईस्ट वाले पिक्सल को चूज करना है। बट अगर d की वैल्यू लेस देन और इक्विवेलेंट टू 0 है, इन दैट केस हम किसको चूज करेंगे, हम ईस्ट वाले पिक्सल को चूज करेंगे। सो नाउ लेट्स सी बोथ द केसेस। लेट्स सी फर्स्ट केस 1, जब हम चूज कर रहे हैं ईस्ट पिक्सल को। तो ईस्ट पिक्सल के लिए क्या है, d की वैल्यू लेस देन और इक्विवेलेंट टू 0।
So now if I draw the equation, if I draw the lines as these, तो ये हमारा initial pixel है. Let's say this is some xp yp. This is northeast, this is east, this is xp plus 1 and yp. नॉर्थ ईस्ट के कोऑर्डिनेट्स हैं xp प्लस 1 yp प्लस 1. ये है मिड पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं xp प्लस 1 yp प्लस हाफ. अगर हम ईस्ट वाले पिक्सल को चूज कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारी लाइन कुछ इस तरीके से जा रही थी, तभी हमने ईस्ट पिक्सल को चूज किया. तो अगर आपने ईस्ट पिक्सल को चूज किया तो नेक्स्ट चॉइस ऑफ पिक्सल आपकी किन के बीच में होगी? इन दोनों के बीच में, राइट? Now let's write down their coordinates. This point will be xp plus 2, yp plus 1. This point will be xp plus 2 and yp. Now if I calculate their midpoint, this comes out to be xp plus 2 and yp plus half, right? So अब ये तो हमारा डी ओल्ड तो था जब हमने इस वैल्यू, इस वाले मिड पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करके निकाला. ये हमारा डी ओल्ड आया था जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा है, राइट? नाउ लेट्स कैलकुलेट द डी न्यू. डी न्यू कैसे निकलेगा? नेक्स्ट चॉइस हमारी किन के बीच में? इसके बीच में एंड इसके बीच में. तो अब हम इन दोनों के बेसिस पे निकालेंगे कि हमारा डी न्यू की वैल्यू क्या है. डी न्यू किन के बीच में है? हम इस वाले मिड पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करेंगे फंक्शन f में. तो xp प्लस 2 yp प्लस हाफ जो है इस न्यू मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स. सो दिस कम्स आउट टू बी a xp प्लस 2 प्लस b yp प्लस हाफ प्लस c. अब हमारे पास डी ओल्ड था ये वाला. दिस इज माई डी ओल्ड, दिस वैल्यू इज माई डी ओल्ड and this is my d new. This is my d new. So now if I take the difference of this d old and d new, बेसिकली हम निकाल रहे हैं यहाँ पे कि चेंज इन d कितना होगा अगर हम ईस्ट पिक्सल को चूज कर रहे हैं. तो चेंज इन d अगर ईस्ट पिक्सल को चूज कर रहे हैं दैट इज d new माइनस d old. d new की वैल्यू क्या है? a ऑफ xp plus 2 plus b of yp plus half plus c. d old की क्या वैल्यू है? दिस इज माई वैल्यू ऑफ d new. d old की वैल्यू है a xp plus 1 b yp plus half plus c. So substitute this d old from this. a xp plus 1 minus b yp plus half minus c. So now these two factors get cancelled. So now we are only left with a, and we have calculated this a in the beginning of our slide. This a is nothing but equivalent to dy. This we have calculated in the beginning. So replace this a with dy. So this a is nothing but equivalent to dy. So अगर आप ईस्ट पिक्सल को चूज करते हो तो आपका जो चेंज इन d है उसकी वैल्यू क्या है? dy. सो बेसिकली हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हर एक पॉइंट में हमें बार बार मिड पॉइंट कैलकुलेट की नीड ना पड़े. हम एक पैरामीटर कैलकुलेट करके रख लें कि अगर हम ईस्ट पिक्सल को चूज करते हैं तो हमारा मिड पॉइंट के वेरिएशन में ये होगा. अगर हम नॉर्थ ईस्ट को चूज करते हैं जो हम अब करके देखेंगे तो उसके लिए हमारा वेरिएशन कितना आता है. एंड वी कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट पिक्सल व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन. सो दिस इज द केस. जब हमने ईस्ट पिक्सल को चूज किया तो हमारा चेंज इन डी आता है दिस. Now similarly let's calculate कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट पिक्सल को चूज करते हैं तो हमारा चेंज इन डी क्या होता है. So this is now case 2 when we are choosing
दी नॉर्थ ईस्ट पिक्सल। दैट मीन्स इस केस में जो आपकी डी की वैल्यू है वो क्या आई थी, ग्रेटर देन 0, दैट इज व्हाई वी आर चूजिंग दी नॉर्थ ईस्ट। सो नाउ लेट्स सी इन दिस केस। Let's call this as XP YP। ये हमारा XP YP था, तो जो हमारी नेक्स्ट चॉइस थी वो थी इसके बीच में और इसके बीच में। दिस इज नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट। लेट्स राइट डाउन द कोऑर्डिनेट। दिस इज XP प्लस 1, दिस इज YP। नॉर्थ ईस्ट के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू थी XP प्लस 1 YP प्लस 1, और इनका जो मिड पॉइंट था उसकी वैल्यू थी XP प्लस 1 YP प्लस हाफ। तो अब अगर हमने नॉर्थ ईस्ट पिक्सल को चूज किया है, दैट मीन्स लाइन जा रही है कुछ इस तरीके से, राइट? और अगर लाइन जा रही है कुछ इस तरीके से, दैट मीन्स जो आपकी नेक्स्ट चॉइस ऑफ पिक्सल है वो किसके बीच में होगी, इसके बीच में एंड इसके बीच में। सो नाउ दिस पिक्सल इज XP प्लस 2 YP प्लस 2 एंड दिस पिक्सल इज XP plus 2 YP plus 1 and their midpoint comes out to be XP plus 2 YP plus 3 by 2, right? So now we can calculate the value of d new. d new क्या होगा इस केस में, जब हम न्यू मिड पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन द इक्वेशन ऑफ द लाइन। सो न्यू मिड पॉइंट की वैल्यू है f of XP plus 2 YP plus 3 by 2. So this comes out to be A of XP plus 2 plus B of YP plus 3 by 2 plus C. Now we need to calculate the change in D, that is D new minus D old, जो हमने ईस्ट के केस में किया था। So D old की वैल्यू क्या है, जो हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट करी है, दिस वन, जहाँ पे मिड पॉइंट की वैल्यू है XP plus 1 plus YP plus half, जो है हमारा फर्स्ट मिड पॉइंट। So now let's calculate the change in D when we are calculating the northeast pixel. So change in D in case of northeast is D new minus D old. D new की वैल्यू क्या है, D new की वैल्यू है AXP plus 2 plus BYP plus 3 by 2 plus C. So let's substitute this value. A XP plus 2 plus B YP plus 3 by 2 plus C and D old की वैल्यू क्या थी, A XP plus 1, this is minus B YP plus half minus C. So these two parameters get cancelled. We are left with A from here, and from here we are left with B, right? Now the value of A from our initial calculation, A is dy and B is minus dx. So A is dy and B is minus dx. So this is a change in D if we are selecting the northeast pixel. So अगर हम ईस्ट पिक्सल को सेलेक्ट करते हैं तो चेंज इन D की वैल्यू क्या आती है, दैट इज ओनली dy, और अगर हम नॉर्थ ईस्ट पिक्सल को सेलेक्ट करते हैं तो चेंज इन D की वैल्यू आती है dy माइनस dx. So now if we carefully see over here, जब हम नॉर्थ ईस्ट पिक्सल को सेलेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स इस अपर वाले पिक्सल को, तो आप x के कोऑर्डिनेट को भी इंक्रीमेंट कर रहे हो बाय 1 एंड y के कोऑर्डिनेट को भी इंक्रीमेंट कर रहे हो। यहाँ पे है ये XP YP और यहाँ पे XP प्लस 1 YP प्लस 1। सो नॉर्थ ईस्ट के केस में आपका x भी इंक्रीमेंट हो रहा है एंड y भी इंक्रीमेंट हो रहा है। बट अगर आप ईस्ट वाले पिक्सल को सेलेक्ट करते हो तो सिर्फ x इंक्रीमेंट हो रहा है बट y रिमेन्स द सेम। सो नाउ इफ आई राइट दिस एल्गोरिथम, जब हम नॉर्थ ईस्ट पिक्सल को सेलेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स इस अपर वाले पिक्सल को, तो आप
x के कोऑर्डिनेट को भी इंक्रीमेंट कर रहे हो बाय 1 एंड y के कोऑर्डिनेट को भी इंक्रीमेंट कर रहे हो. यहाँ पे है ये xp yp और यहाँ पे xp प्लस 1 yp प्लस 1. सो नॉर्थ ईस्ट के केस में आपका x भी इंक्रीमेंट हो रहा है एंड y भी इंक्रीमेंट हो रहा है. बट अगर आप ईस्ट वाले पिक्सल को सेलेक्ट करते हो तो सिर्फ x इंक्रीमेंट हो रहा है बट y रिमेन्स द सेम. सो नाउ इफ आई राइट दिस एल्गोरिथम, अगर हम मिड पॉइंट एल्गोरिथम लिखें अब, तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ d, दैट इज आर इनिशियल मिड पॉइंट. इनिशियल मिड पॉइंट किससे आया था, xp प्लस 1 एंड yp प्लस हाफ से, राइट. अगर इस d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, in that case we will choose the northeast pixel. But if d की value less than or equal to 0 है, in that case we choose the east pixel. अगर हमने east pixel को choose किया है, so in that case increment x coordinate by 1. यही अभी हमने देखा कि ईस्ट के केस में सिर्फ x इंक्रीमेंट होता है, y रिमेन्स द सेम. एंड हम डी न्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं इस केस में, डी न्यू कैलकुलेट करते हैं बाय अ न्यू मिड पॉइंट विच वाज गिवन बाय xp प्लस 2 yp प्लस हाफ. सो f ऑफ xp प्लस 2 yp प्लस हाफ. हम डी न्यू इससे कैलकुलेट करते हैं. चेंज इन डी इन केस ऑफ ईस्ट क्या आया था, डी न्यू माइनस डी ओल्ड विच कम्स आउट टू बी ए और वी कैन से dy. सो दिस इज व्हेन पिक्सल E is chosen. But if northeast is chosen, in that case increment x also by 1, increment x by 1 and increment y also by 1, increment y by 1. In that case आपका जो d आता है d new, वो क्या आता है, d new in case of north east is xp plus 2 yp plus 3 by 2. xp plus 2 yp plus 3 by 2. So change in d in case of northeast comes out to be d new minus d old. So this is f of xp plus 2 yp plus 3 by 2 minus f of xp plus 1 yp plus half. Now this we have already calculated just now. This comes out to be a plus b which is equivalent to dy minus dx. Now ये तो हो गए हमारे चेंज इन पैरामीटर्स जब हमने ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट से को चूज किया. नाउ वी ऑल्सो नीड टू कैलकुलेट कि हमें डी स्टार्ट किससे करना है, राइट. सो व्हेन वी आर स्टार्टिंग द एल्गोरिथम, अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन है, लेट्स से कोई स्टार्टिंग पिक्सल गिवन है लेट्स से 0 0 और एंडिंग पिक्सल गिवन है लेट्स से 5 5, राइट. सो इस केस में आप डी स्टार्ट किससे करोगे. सो नाउ लेट्स कैलकुलेट द डी स्टार्ट, राइट. सो नाउ हाउ वी विल कैलकुलेट द डी स्टार्ट, दैट इज इवैल्यूएटिंग डी एट द स्टार्टिंग पॉइंट. So D start is nothing but हमारा जो स्टार्ट होता है D वो किससे होता है. If we see this slide over here, अगर ये हमारा कोई भी स्टार्टिंग पिक्सल है, राइट. सो जो D हम जिससे स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग मिड पॉइंट तो हमारा यही आता है xp plus 1 yp plus half. So substitute this in the equation, xp plus 1 yp plus half. So f of, अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं लेट्स से एज सम x नॉट y नॉट. सो हमारा मिड पॉइंट क्या आता है, x नॉट प्लस 1 y नॉट प्लस हाफ. सो दिस इज a x नॉट प्लस 1 प्लस b y नॉट प्लस हाफ प्लस c.
So this comes out to be ax naught plus by naught plus c, and this comes out to be a plus b by 2, right? Now this is nothing, अगर हम एक लाइन की इक्वेशन में x नॉट y नॉट सब्स्टिट्यूट करें तो हमें यही मिलेगा, राइट? लाइन की इक्वेशन क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी. x और y की जगह अगर मैं x नॉट y नॉट सब्स्टिट्यूट करूं so I will get this only, right? So can I write this as f of x naught comma y naught, which is representing the equation of line, plus a plus b by 2. अब किसी भी लाइन की इक्वेशन में अगर आप उस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करते हो जो लाइन के ऊपर ऑलरेडी लाई कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? इक्वेटेड टू 0. सो दिस x नॉट y नॉट इज ऑलरेडी लाइंग ऑन द लाइन, बिकॉज लाइन तो आपकी इसी पॉइंट से पास कर रही है ना. हमने स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिया? अपना स्टार्टिंग पॉइंट लिया है ये वाला, राइट? सो लाइन तो इस पॉइंट से पास ही कर रही है, तो इसको जब आप लाइन के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे दिस विल इक्वेटेड टू 0. सो this comes out to be 0 and we are left with a plus b by 2, or we can say a is representing your dy and b is representing your dx minus dx, right? As we have seen in the initial slide. A is dy and b is minus dx. नाउ हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि ये क्या है? इंक्रीमेंटल एल्गोरिथम है, दैट इज इट इज एन इंटीजर बेस्ड अरिथमेटिक. सो अगर इंटीजर बेस्ड अरिथमेटिक है तो हमें इस फ्लोटिंग पॉइंट को यहाँ से हटाना होगा, राइट? इन ऑर्डर टू मेक ऑल दीज इंटीजर्स. सो बेसिकली इन ऑर्डर टू मेक ऑल द 3 पैरामीटर्स, हमारे पास कौन कौन से पैरामीटर्स है? हमारे पास पहला पैरामीटर है चेंज इन डी, जब आपने ईस्ट नॉर्थ ईस्ट पिक्सल को चूज किया, चेंज इन डी जब ईस्ट पिक्सल को चूज किया, और आपका डी स्टार्ट, राइट? चेंज इन डी जब नॉर्थ ईस्ट को चूज किया तो उसकी वैल्यू हमारी क्या आई है? डी वाई माइनस डी एक्स. ईस्ट के केस में क्या है? डी वाई आया है, और डी स्टार्ट आपका क्या है? डी वाई माइनस डी एक्स बाय 2. सो इन ऑर्डर टू मेक दीज अरिथमेटिक इंटीजर अरिथमेटिक, इन ऑर्डर टू मेक these as integer arithmetic, we multiply all these 3 factors by 2 in order to get rid of this 2 over here. So multiply this by 2, multiply this by 2 and multiply this by 2. So now change in D in case of northeast comes out to be twice of dy minus dx. Change in D in case of east comes out to be twice of dy, and D start comes out to be twice of dy minus dx. So now if I frame the complete algorithm, so it says अगर हमें जो भी स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है, let's say हमें कोई x naught and y naught given as a starting point. So make x as your x naught, make y as your y naught. First we will calculate the change in slope, that is we will calculate dy, which is y1 minus y naught. That means आपको लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है एंड आपको लाइन का फिनिशिंग पॉइंट गिवन है, which is x1 y1. So हम dy कैलकुलेट कर लेंगे, सिमिलरली हम dx कैलकुलेट कर लेंगे, right? And we will calculate all the factorizations that we have just calculated. D start, which comes out to be twice of dy minus dx. Then we will calculate change in D in case of east pixel, which is twice of dy. Then we will calculate change of D in case of northeast pixel, which comes out to be twice of dy minus dx. Now once we have calculated all the factorization, we will plot our first point. So the second point says now secondly we will plot our first point, which is xy. Now we will continue our algorithm until जो भी आपका x कोऑर्डिनेट है वो इक्वल नहीं हो जाता आपके फिनिशिंग पॉइंट के x कोऑर्डिनेट से. So we will continue until
our x coordinate does not become equal to the हमारा लाइन का फिनिशिंग पॉइंट क्या है x1 y1, तो हम तब तक चलते जाएंगे जब तक हमारा x कोऑर्डिनेट इक्वल नहीं हो जाता हमारे फिनिशिंग पॉइंट के x कोऑर्डिनेट से। सो अब नाउ सी द फैक्टराइजेशन। अगर आपका जो डी चार्ट है वो लेस देन और इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स यू हैव टू चूज द ईस्ट पिक्सल। सो इन दिस केस चूज ईस्ट पिक्सल। ईस्ट पिक्सल के केस में आपको क्या करना है, जो भी आपका डी चार्ट वैल्यू होगी उस वैल्यू में आप ऐड कर दो अपना चेंज इन डी। तो ये जो डी चेंज इन डी हमने निकाला है इसका मेन पर्पस यही है कि आपको बार बार मिड पॉइंट ना कैलकुलेट करना पड़े। तो हमने एक कॉमन फैक्टर निकाल के रख लिया कि अगर आप ईस्ट पिक्सल चूज करते हो तो आपके मिड पॉइंट में क्या चेंज आएगा, अगर आप नॉर्थ ईस्ट पिक्सल चूज करते हो तो आपके मिड पॉइंट में क्या चेंज आएगा, और उस चेंज को हम हर बार डी चार्ट की वैल्यू में ऐड करते जाएंगे इन ऑर्डर टू गेट आवर नेक्स्ट मिड पॉइंट। सो जब ईस्ट पिक्सल चूज होता है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट में इंक्रीमेंट करते हैं। ये हमने अभी देखा है कि व्हेन वी आर सेलेक्टिंग द ईस्ट पिक्सल, दैट इज इन दिस केस जब ईस्ट सेलेक्ट होता है तो सिर्फ एक्स में इंक्रीमेंट होता है, वाई सेम रहता है, और जब नॉर्थ ईस्ट सेलेक्ट होता है तो एक्स में भी इंक्रीमेंट होता है एंड वाई में भी इंक्रीमेंट होता है। So in case of east pixel only x will be incremented and we will plot our new point which is x, y. But if d आपकी greater than 0 है, in that case you will choose the northeast pixel. जब हम north east choose करेंगे तो आपका जो d चार्ट है उसमें क्या हो जाएगा, आप change in d ऐड करोगे जो हमने north east के केस में कैलकुलेट किया, राइट? एंड आपका x भी इंक्रीमेंट हो जाएगा बाय 1 एंड आपका y भी इंक्रीमेंट हो जाएगा बाय 1 एंड वी विल प्लॉट दिस पॉइंट xy। Right? So this is how we will calculate the points using the midpoint line drawing algorithm. In the next video, we will see the numerical of the midpoint line drawing algorithm. If you like this video, then do like and share my video and subscribe my channel. Thank you.